Hello, my dear friends. How are you all, students? Today, we will start our journey in the world of English grammar. So, are you ready, all of you? And today's our destination is clauses. It's a very simple term. Let's see. Okay? Come. Students, before I start explaining you what is the clauses, read the following sentence carefully and try to understand. The first sentence, I lost a blue pen. The first sentence is, I lost a blue pen. The second one, I lost a pen which is blue in color. In the first sentence, the group of words printed in the bold, a blue pen, है ना, ये जो blue pen लिखा है bold words में, this forms a phrase, है ना, ये phrase है बेटा. Why? Because it does not have a finite verb. उसके पास finite verb नहीं है. अभी ये क्या नया टर्म आ गया, finite verb. Let's check. Finite verb क्या होता है? Finite verb बच्चा वो होता है a verb which shows time. A finite verb which shows time, or a verb which is limited by number, which is limited by person and the gender of the subject. And on the other hand, non-finite verb क्या होता है? Non-finite verb is a verb that does not show time, or a verb which is not limited by the number, which is not limited by the person, and the tense of the subject is known as the non-finite verb. Say for example, Neha writes letters. They write letters and we have written the letters. Here writes, write and written. ये तीनों finite verb है. And on the other hand, Raman tries to sing. We try to sing. They try to sing. ये to sing है, ये non-finite verb है. Why? Because ये जो to sing verb है ना, it does not show time. ये verb ऐसा है जो is not limited by the number of persons and the tense of the subject. Okay? बेटा ये non-finite verb है ना, non-finite verb. इसको आप लोग furtherly 3 टाइप में डिवाइड करते हो. One is infinitive, second one is gerund and third one is participle. Okay? So, come to the topic. In first sentence इसको मैं phrase बोलता हूँ because इसके पास finite verb नहीं है. लेकिन second sentence देखो, I lost a pen which is blue in color. Which is blue in color has a finite verb. इसका finite verb है, कौन सा है? Is. Yes, correct. Is is the finite verb. ये आपको tense दिखाता है, प्रेजेंट टेंस शो करता है यहाँ पे. एंड अ सब्जेक्ट है बेटा विच इज ब्लू इन कलर. सो विच इज द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्लॉज है. सो क्लॉज का डेफिनेशन मैं इसके ऊपर से ही बना देता हूँ. व्हाट इज अ क्लॉज? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ क्लॉज इज व्हाट? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है. एंड वन मोर थिंग, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब. उसको एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है. सो बेटा 4 कंडीशन मिलती है मुझे यहाँ पे. नंबर 1, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नंबर 2, it forms as a part of sentence. Number 3, it has a subject. Number 4, it has a finite verb. So 4 कंडीशन चाहिए क्लॉज बनाने के लिए. नंबर 1, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नंबर 2, ये ग्रुप ऑफ वर्ड forms a part of sentence. And third one, it requires a subject. And fourth one, it requires a finite verb of its own. So बच्चा पार्टी, a clause is a group of words that forms parts of a sentence and it has a subject and a finite verb of its own. Now a clause जो होता है ना, a clause has only one finite verb चाहिए मुझे. 2 रहेगा तो नहीं होगा, एक ही चाहिए, only one. इन सेंटेंस बी देखो बेटा, I lost a pen which is blue in color. ये is
वन एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब है पूरे सेंटेंस में. सो दिस इज अ क्लॉज. क्लियर? नाउ बेटा एक यहाँ पे एक टर्म आया था, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस. तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड you can say sentence. So here is a difference between the sentence, clause and phrase. See what is sentence. Sentence क्या है? A sentence is a group of words that makes complete sense and has at least one finite verb. A phrase forms a part of sentence and a clause forms a parts of sentence too. एक सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस में बेटा कंप्लीट सेंस होता है और एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब मिलता है सेंटेंस में. लेकिन फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं है, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं है. क्लॉज में, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना. क्लॉज इज, चार कंडीशन थी ना क्लॉज की. फाइनाइट वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड चाहिए एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस भी होना चाहिए. सेंटेंस क्या है? एक एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब. फ्रेज क्या है? इट डज नॉट हैव फाइनाइट वर्ब, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट. देन क्लॉज में क्या होता है? इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. बेटा देखो, चेक करो यहाँ पे, सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट होना चाहिए और क्लॉज में एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए. इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. सेंटेंस, it can stand always on its own. सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस वो कंप्लीट थॉट लेके आता है, उसके लिए दूसरे का डिपेंडेंसी नहीं चाहिए उसको. सो इट कैन स्टैंड ऑलवेज ऑन इट्स ओन. फ्रेज का तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा unless and until you utilize that phrase in the sentence. So it cannot stand on its own. It requires subject, it requires finite verb, है ना, it requires non-finite verb. अदरवाइज ये बेटा एकदम सिंगल वर्ड है, ऐसा समझो, सिंगल ऐसा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. देन क्लॉज, इट मे स्टैंड ऑन इट्स ओन और मे नॉट. देखो उसका मीनिंग रहेगा ना, मीनिंग क्लॉज का, तो इट फॉर्म अ सेंटेंस, तो एक सेंटेंस में फॉर्म हो जाएगा वो, मीनिंग रहेगा तो. बट इफ यू कैन से दैट इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग ऑन इट्स ओन, then it must be the part of the sentence which consists of two or more clauses. See the example. He saw a boy wearing a black hat. ये wearing है ना, wearing non finite है बेटा, ना नंबर दिखाता है, ना people दिखाता है, ना tense दिखाता है ना. He saw a boy who was wearing a black hat. ये was दिखा रहा है tense, इसके लिए finite verb हो गया है. Subject who है and finite verb was wearing है, तो ये clause बन जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कुछ असाइनमेंट देखते हैं हम लोग, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग को फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस समझाए कि नहीं. सो आइडेंटिफाई द फ्रेज, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. ओके, सी द फर्स्ट एग्जांपल. तपन लिव्स इन अ हाउस, तपन लिव्स इन द हाउस अक्रॉस द रोड. हियर अक्रॉस द रोड, बताओ बेटा फाइनाइट वर्ब है क्या इसमें? नहीं है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब है. ओके ओके, वर्ब भी नहीं है, फाइनाइट भी नहीं, नॉन फाइनाइट भी नहीं, hence it is a phrase. See the second one. Jyoti is a girl who has great courage. So who is the subject? Has is the finite verb. तो who has great courage ये बेटा clause हो गया. I try to learn French but in vain. बराबर ना, तो I try to learn French is a phrase. Try to learn is a phrase. The cat hid under the table. Under the table is, you can say, yes, correct, it's a phrase. No finite verb is there and you can say no subject is there. Ram was teaching when we called him. So Ram was teaching, yes, it's a clause. ये clause है. क्यों? Because it has a subject.
क्या सब्जेक्ट है? राम. एंड वॉज टीचिंग, ये बेटा टेंस दिखाता है आपको, हेंस इट इज अ फाइनाइट वर्ब. बेटा कब से ये क्लॉज 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 चल रहा है ना, तो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लॉज. बेटा मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नॉर्मली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. पहला होगा बेटा सिंगल क्लॉज. क्या होगा? सिंगल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. दूसरा होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज. थर्ड होगा मेन क्लॉज एंड फोर्थ होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज. फर्स्ट वन सिंगल क्लॉज, बेटा इसका एक ही सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस नहीं होगा. नो सबऑर्डिनेटर, नो डिपेंडेंट क्लॉज इज देयर. Single clause. Independent clause, a phrase or a group of phrase that makes sense of its own. I lingered at the bottom of the road. बेटा दूसरा सेंटेंस कोई पार्टी नहीं है, no subordinator is there, so it's a single independent clause. See the second one, coordinate clause. Coordinate clause क्या होता है? It is joined by the conjunction, है ना, for, and, but, इससे ज्वाइन करते हैं हम लोग. I like mango and I like chocolate. and आया बीच में. I shivered in the mist and turned my collar up. ये and से ज्वाइन किया. Both the clauses are of equal status. दोनों का स्टेटस इक्वल है. ये सेंटेंस भी मीनिंगफुल है और दूसरा सेंटेंस जो बोल रहा हूं मैं वो भी मीनिंगफुल है. आई लाइक मैंगो, इसका भी मीनिंगफुल सेंटेंस है. आई लाइक चॉकलेट, इसका भी मीनिंग है, दोनों का इक्वल स्टेटस है, हेंस इट इज अ कोऑर्डिनेट क्लॉज. थर्ड वन इज द मेन क्लॉज. ये मेन क्लॉज है ना बेटा, ये और सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज में नॉर्मली कोई फर्क नहीं दिखता है, दोनों में एक ही फर्क है. मेन क्लॉज रहेगा ना, उसके पीछे एक शेपुट रहेगा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और सिंगल क्लॉज सिंगल होगा. ओके, मेन क्लॉज है वो सिंगल क्लॉज जैसा ही होता है, उसको भी एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, बट इट हैज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एडेड टू इट. उसके साथ में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. बट व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज द डिपेंडेंट क्लॉज. ये डिपेंड होता है. जब तक मेन क्लॉज समझेगा नहीं तब तक सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंगलेस हो जाता है वो. So this is a clause. Subordinate clause is a clause one that is in some way depend on another for its meaning. वो दूसरे के ऊपर मीनिंग के लिए डिपेंड होता है. देखो हाँ, as soon as I entered the class I looked at my students. बेटा मैंने ऐसा बोल दिया ना, I looked at my students, तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस आपको समझ में आता है कि मैंने मेरे स्टूडेंट्स के सामने देखा. बट व्हेन आई से as soon as I entered the class, this part is incomplete thought. आप मुझे पूछोगे सर what had happened as soon as you entered the class? So here this is dependent clause and it is dependent on the second part of the sentence. I looked at the students. So one example is given here. As I did every morning, I looked up at the sky. As I did every morning is a subordinate clause, and the rest part of this sentence, I looked up at the sky, is the main clause. बेटा अभी ये कब से मेन क्लॉज और ये सब चल रहा है. लेट्स सी व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ प्रेडिकेट. आई लाइक मैंगो, इसमें देखा बेटा आई सब्जेक्ट है, लाइक मैंगो इज द प्रेडिकेट, है ना. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने सीखा है लोअर स्टैंडर्ड में. सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज contains a subject, it contains a predicate, and it also expresses a complete thought. It can stand alone, it has a complete meaning, and it can stand alone as a full sentence on its own. An independent clause is formed with subject and predicate. अभी ये independent clause है ना, it is also known as principal clause, it is also known as main clause. ये प्रिंसिपल क्लॉज भी है, मेन क्लॉज भी है. कैसे? देखो
ये जो क्लॉज है ना, ये एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन क्लॉज, पहला तो. सेकेंडली, अ मेन क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट, अ मेन क्लॉज हैज अ प्रेडिकेट एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. It is the only type of clause that can stand alone as a sentence. Main clause एक अकेला खड़ा हो सकता है सिंगल सेंटेंस के जैसा. A main clause can also be called an independent clause. And बेटा एक बात और नोट डाउन कर लो, मेन क्लॉज में कोई कंजंक्शन नहीं होता है. ओके, जस्ट रीड दिस. सबऑर्डिनेट क्लॉज. This clause is also known as dependent clause. Depend होता है. A clause that add the additional information to the main clause. ये additional information देता है main clause को, but which cannot stand alone as a sentence. जो complex sentence है ना बेटा, simple sentence, compound sentence, complex sentence, ये complex sentence में एक part main clause होता है और दूसरा part subordinate clause होता है. He believed that the earth was round. So he believed is the main clause and that the earth was round is the subordinate clause. He believed, ये पूरा complete thought देता है. लेकिन जो second part है ना, वो additional information देता है on his belief. So that the earth was round is the subordinate clause. Okay? Here the earth is the subject, was is the finite verb. Now here I am going to explain you only two types of clauses, and in this video I will explain you noun clause. So बच्चा party, clause. Clause are of two type. One is main clause and the second one is subordinate clause. One is main clause and the second one is subordinate clause. This subordinate clause is also known as dependent clause, as I told you earlier. Now बच्चा, this subordinate clause is further divided into three types. Number one is noun clause. ये noun clause है. इसको और आगे तीन टाइप में हम लोग देखने वाले हैं. One is that clause, if clause and WH clause. ये तीनों से हम लोग सीखेंगे. एक that से joint होता है. Normally noun clause है ना, उसमें that ज़्यादा मिलता है आपको. As a subordinator आपको that ज़्यादा मिलेगा. If भी होता है और WH question भी होता है. Then बेटा WH clause. Subordinate clause का second division है adjective clause. It is further divided into restrictive clause and non-restrictive clause. Then आएगा adverbial clause और adverb clause. बेटा ये adverb clause है ना, ये adverb clause क्या क्या दिखाता है मालूम है? टिप्पी सिप्पी, याद है ना, चार फेस पे हम लोग करते, फेस के ऊपर चार, टी पी सी पी आर सी 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 एम. चलो फुल फॉर्म के साथ. टाइम, प्लेस, कॉज, पर्पस. टाइम, प्लेस, कॉज, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, कंसेशन, कंपैरिजन एंड मैनर. So here adverb clause gives the information about time, about place, about cause, about purpose, about you can say result, about you can say condition, comparison, concession and manner. लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ noun सीखने वाले हैं ना ये वीडियो में. So noun clause, that clause, if clause and WH clause, ये याद रखने का. बच्चा चलो noun clause. क्या है डेफिनेशन नाउन क्लॉज का? नाउन क्लॉज का डेफिनेशन यही है कि वो काम करता है नाउन के जैसा. व्हाट इज नाउन क्लॉज? इट एक्ट्स एज अ नाउन, इट फंक्शंस एज अ नाउन. हाँ, इसमें बेटा सब्जेक्ट भी रहेगा और वो हमारा फाइनाइट वर्ब भी में रहेगा. ठीक है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन नाउन क्लॉज. अ नाउन क्लॉज विथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. A noun clause with a subject and a verb that functions as a noun. See the example. Whatever you wish is my command. देखो जिन क्या बोल रहा है बाजू में? तुम्हारी इच्छा वो मेरा आदेश रहेगा ना, ये मेरे लिए आदेश रहेगा. Whatever you wish is my command. So whatever is the subordinator, you is the subject of the clause and finite verb wish present tense दिखा रहा है ना. So it's a finite verb.
Is my command is the main clause and the first part of the sentence is noun clause because it acts as a noun of the verb is. कैसा लिखने का? पहला लिखने का main clause. It is my command is a main clause. Okay. फिर लिखने का subordinate noun clause. Subordinate noun clause. Whatever you wish. Act as a subject of the verb is. Second example, I know where the treasure is. I know main clause and subordinate noun clause क्या रहेगा? Where the treasure is. तो लिखने का कैसा? Subordinate noun clause act as object of the verb noun. Noun का object का काम देता है यहाँ पे. Okay? चलो थोड़ा डिटेल में चलेंगे. बेटा नाउन क्लॉज क्या? एक इन शॉर्ट समराइज करेंगे. सो द नाउन क्लॉज इज द क्लॉज दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन. क्या करता है ये? नाउन क्लॉज इज अ क्लॉज दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन. ये नाउन का फंक्शन करता है. अभी देखो ना वो एक एग्जाम्पल है ना. ही थॉट दैट हिज डॉग वॉज लॉस्ट. हियर दैट हिज डॉग वॉज लॉस्ट इज अ क्लॉज. क्यों? क्योंकि देखो हिज डॉग सब्जेक्ट दिखेगा आपको इसमें फाइनाइट वर्ब वॉज भी दिखेगा तो आप इसको क्लॉज बोल दोगे. और एक है आप इसको व्हाट से क्वेश्चन करोगे ना तो भी आंसर मिलेगा. आपका क्वेश्चन रहेगा व्हाट डिड यू थिंक तो आपका आंसर रहेगा दैट हिज डॉग वॉज लॉस्ट. क्वेश्चन ये पार्ट से पूछने का, दूसरा पार्ट से आंसर रहेगा. आपने फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन पूछा व्हाट डिड यू थिंक, आपको आंसर आया सेकेंड पार्ट से दैट इज डॉग वॉज लॉस्ट. तो बेटा ये हो जाएगा नाउन क्लॉज. जिधर से क्वेश्चन पूछोगे वो मेन क्लॉज, जिधर से आंसर आएगा वो नाउन क्लॉज. लेकिन क्वेश्चन आपको व्हाट से ही पूछना है. सो हियर द क्लॉज आंसर द क्वेश्चन व्हाट थॉट व्हाट, है ना. आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है थॉट व्हाट. इट मीन्स दैट इट इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब थॉट. थॉट का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. डूइंग द वर्क ऑफ द नाउन. वो नाउन के प्लेस में जा रहा है, रिसीवर के प्लेस में जा रहा है. Therefore we can say that the clause is a noun clause. That his dog was lost is a noun clause. Second example देखो, he thought of a new pen. ये of a new pen है ना, of a new pen. ये भी ऑब्जेक्ट है ना. It is a group of words. A new pen. ये नाउन का काम देता है, ऑब्जेक्ट का काम देता है. लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे ना व्हाट थॉट, इसका भी आंसर देता है. देखो दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है. ऑब्जेक्ट भी है, नाउन भी है एंड थॉट का आंसर भी आ रहा है. लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, क्या? सब्जेक्ट भी नहीं है और फाइनाइट वर्ब भी नहीं है. इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब एंड इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट. तो कैसे मैं इसको नाउन क्लॉज बोलूं, है ना. इट्स नॉट अ नाउन क्लॉज, इट्स अ नाउन फ्रेज. See the two more additional example. The first one is he expected to succeed. बेटा ये नाउन फ्रेज रहेगा. क्यों? टू सक्सीड में न तो फाइनाइट वर्ब दिख रहा है आपको और ना तो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है. तो इट्स अ नाउन फ्रेज, नॉट अ नाउन क्लॉज. अभी दूसरा देखो, he expected that he would be successful. ये नाउन क्लॉज है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे he is the subject, would is the finite verb. Okay? Are you getting all? चलो समराइज करते हैं. नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट इज यूज्ड एज अ नाउन विद इन द मेन क्लॉज ऑफ सेंटेंस. ये पूरा एक सेंटेंस के अंदर नाउन का काम देता है. यू कैन यूज नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना. आप सब्जेक्ट के जगह पर रख लोगे यानी डूअर के जगह पे रखोगे. आप सेंटेंस में रिसीवर के जगह पे रखोगे. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और बेटा कभी कभी क्या होता है ना, और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन में भी रखते हो. देखो whoever wins the election will speak. दिख रहा है ना आपको. चलो नेक्स्ट देखते हैं. A noun clause performs the following functions. 3 functions है उसके, याद रखो. नाउन क्लॉज एक्ट एज अ सब्जेक्ट यानी डूअर के प्लेस में जाएगा.
नाउन क्लॉज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर के प्लेस में जाएगा एंड नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये, ठीक है। पहला सेंटेंस देखो, ऑल दैट इज सेड was agreed by all that is said was agreed by all. Here all that is said है ना is a noun clause. क्यों yes correct बेटा, ही सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ओके, एंड was है वो आपका वर्ब भी दिख रहा है। एक दूसरा बेटा, ये was के एग्जैक्ट पहले आपको सब्जेक्ट का काम दे रहा है। So all that is said act as a subject of the verb was and noun clause as an object of a verb. देखो उसका एग्जाम्पल, I hope that the experiment would be successful. I hope that the experiment would be successful. बेटा that the experiment would be successful, पहला तो ये पूरा क्लॉज है, क्यों, हाँ इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें फाइनाइट वर्ब भी है, लेकिन दैट से लेके एंड तक ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिसीवर का काम कर रहा है। सो इज अ नाउन क्लॉज एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होप, होप की जगह पर होप का ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। एंड थर्ड सेंटेंस, यू शुड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। हियर व्हाट आई एम सेइंग एक्ट एज अ नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू। बेटा कुछ पॉइंट्स याद रखो ऑलवेज, नाउन क्लॉज कैसे फाइंड आउट करोगे, एक ये दैट क्लॉज होता है, एक ये WH क्लॉज होता है और एक ये इफ क्लॉज होता है। वापस एक बार बोलता हूँ मैं, दैट इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस बाय ईदर बाय दैट और बाय WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन कौन से, तीन है बेटा, वाई, वॉट एंड हाउ। वाई, वॉट एंड हाउ से क्वेश्चन आया तो समझ लो बेटा कि ये आपका नाउन क्लॉज रहेगा। तीसरा दैट इज इफ से स्टार्ट होता है, ऑलवेज इंट्रोड्यूस बाय इफ, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट टू बी रिमेंबर, द फर्स्ट वन, अ नाउन क्लॉज इज जनरली इंट्रोड्यूस बाय दैट से इंट्रोड्यूस होता है। सानिया सेड दैट शी वॉज अटेंडिंग द पार्टी, बेटा दैट से ज्वाइंट हुआ, दिख रहा है आपको। सेकेंड, इट मे ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस बाय द क्वेश्चन वर्ड्स लाइक यू कैन से वाई, वॉट एंड हाउ। Sania wondered why Sona did not call her, and she wondered what the matter was. It may also be introduced by whether or if. They wanted to know if we were interested. Or second sentence है, Rohan asked whether I would play with him. बेटा और एक में हिंट आपको मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, और एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, देखो कंजंक्शन फाइंड आउट करो, दैट, व्हाट एंड इफ। दैट, व्हाट एंड इफ, देखो ये पहला सेंटेंस, सानिया सेड दैट, ये दैट के एग्जैक्ट बिफोर में सेड वर्ब दिख रहा है आपको, हाँ दैट के एग्जैक्ट बिफोर में सेड वर्ब दिख रहा है, वर्ब है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नाउन क्लॉज, ठीक है। अभी देखो सानिया वंडर्ड, ये वंडर्ड क्या है बेटा, वर्ब है, तो वंडर्ड के बाद में जितना भी लिखा है वो हो गया नाउन क्लॉज। शी वंडर्ड व्हाट द मैटर वाज, ये वंडर्ड वापस ये वर्ब हुआ तो व्हाट द मैटर वाज इज द नाउन क्लॉज। दे वांटेड टू नो, ये टू नो इज द वर्ब, तो बाकी का पार्ट क्या हो गया बेटा, नाउन क्लॉज। रोहन आस्क्ड वेदर आई वुड प्ले विथ देम, ये देखो रोहन आस्क्ड क्या है बेटा, वर्ब है, तो वर्ब के बाद का जो सेंटेंस है, बाद का जो पार्ट है वो हो गया नाउन क्लॉज। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। सो समराइज करते हैं हम लोग इसको थोड़ा, नाउन क्लॉज दैट क्लॉज है, इफ क्लॉज है एंड WH क्लॉज है। एग्जांपल्स देखते हैं बेटा थोड़ा डिटेल में। नाउन क्लॉज आई बिलीव, ये बिलीव देखो वर्ब है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया बेटा, रिमेनिंग पार्ट नाउन क्लॉज हो गया। आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, आई नो दैट द स्टूडेंट स्टडीड देयर असाइनमेंट, नाउन क्लॉज इफ से है, नाउन क्लॉज WH से है। I don't know if my sister is at home. I don't know whether my sister is at home. I don't know whether my sister is at home or not. And I don't know whether or not my sister is at home. आप चेक कर सकते हो बेटा, नो से आगे इफ वेदर है तो ये वर्ब से बाद का सेंटेंस है वो नाउन क्लॉज बन जाएगा। I want to know what makes you laugh, ये देखो what, where and how से क्वेश्चन पूछा है, चेक करो। नाउन क्लॉज with WH words, noun clause with that and noun clause with if or whether. Here are some assignment.
you have to complete at your home. Identify the noun clause. The first one, he said that he will join the intellectual academy. Second one, what you said yesterday is difficult to remember. The student said that the test was easy. The man recounted how he fought with the robbers. The boy who comes first will get the first prize. I know why Sita is behaving like this. You should remember that you have to buy a gift today. Now we know why we need to plant more trees. He wondered why everybody was ignoring him. The waiter asked whether we would order some dessert or not. I am sure that he will have a successful career. I am sure that he will have a successful career. He was not informed when he will come. I know that you like comics. 14th one, parents were worried why children did not listen them. And the teacher said that the noun clause is very easy. Isn't it, bacha? Thank you. And definitely we will learn further about the clauses. Anna, thanks for watching my video. And very soon we will meet with the next part. Thank you, thank you, thank you.